Hello friends, welcome to my channel. Today we will understand the grammar, and in last video we had done question answers. So we will do now grammar. Using grammar, page number 119 of class 4th, communicate with Cambridge. Now we will start with it. Personal pronouns. Topic is personal pronouns. Words that you can take the place of nouns are called personal pronouns. These words are I, you, she, he, it, we, they, me, him, her, us and them. Words that can take the place मतलब place of nouns of place के nouns को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. जैसे I, मैं, तुम, ही बॉय के लिए यूज़ करते हैं, शी गर्ल के लिए करते हैं, इट नॉन लिविंग के लिए करते हैं, वी मतलब ग्रुप हो, दे मतलब कि 3-4 लोग इकट्ठे हों कि वो, मी मतलब मैं, हिम मतलब बॉय के लिए, हर गर्ल के लिए, अस मतलब हम, दैम मतलब वो, वह. When my mother saw our master at the gate, my mother would trot up to our master. When my mother, my क्या है? What is my? Personal pronoun. My mother क्या होगा? Personal pronoun. And our master, our क्या है? Pronoun. My personal pronoun है, इसके लिए our master एक pronoun हो गया. My mother फिर आ गया and our master फिर आ गया, मतलब ये है personal pronouns. When my mother saw our master at the gate, she would trot up to him. ये वही है. Now note how in the second sentence pronoun she and him, वहाँ पर my mother our master आया, she would trot up to him, वो उससे मिलने लगी. She और him, ये भी him कौन से बॉय के लिए यूज़ करते हैं, she यूज़ करते हैं गर्ल के लिए, तो she और him भी पर्सनल प्रोनाउन है. Note how in the second sentence the pronoun she and him replaced by my mother and our master. Our master की जगह आ गया boy and my mother की जगह आ गया she. Our master की जगह आया him आया. जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं on your friend, write a essay on your topic my best friend. हम ये थोड़ा का उसका नाम ऋषिका है, या उसका नाम कृतिका है, whatever, कृतिका is my best friend name is कृतिका is 8-year-old. कृतिका is 9. कृतिका reads in class 3rd. कृतिका is like to read राजमा चावल whatever. तो हम कृतिका बार बार नहीं लिखेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? शी करेंगे. और जैसे इस लाइन में लिखा था कि माई मदर सॉ आवर मास्टर एट द गेट, माई मदर वुड ट्रॉट अप टू आवर मास्टर. ये मतलब थोड़ा सा मीनिंगफुल, मतलब थोड़ा सा और सा है, पर शी और हिम यूज़ किया तो ये परफेक्ट बन गया. माई मदर बार बार लिखना ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो हम क्या करते हैं, शी और ही या हिम और हर यूज़ कर लेते हैं. तो हम ऐसे भी लिखेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ कृतिका, शी इज़ 9-year-old, शी लाइक टू ईट राजमा चावल, शी लाइक रेड कलर, शी लाइक टू प्ले विद मी, likes to play with me, like this. So rewrite this sentence using personal pronouns in the place of highlighted words. Mohsin is a boy. Mohsin is at home. और Mohsin is a boy. Mohsin क्या है? एक बॉय है. वो Mohsin कहाँ पर है? एक हूँ में है. हम कैसे लिखेंगे? Mohsin is a boy. He is at home. Halima is a girl. Halima is in class. Halima क्या है? Girl. तो हमें ये कैसे बनेगा? Halima is a girl
she is in class. So next, Mohsin and Halima are siblings. Mohsin and Halima lives in Lucknow. Mohsin and Halima are siblings, मतलब वो ब्रदर सिस्टर हैं. वो कहाँ पर रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं. क्या लिखेंगे? Mohsin and Halima are siblings. They live in Lucknow. Julina is a clever boy. I like Julina. Julina is a मतलब जो Julian is a clever boy. Julian जो है एक चालाक लड़का है. I like Julian मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे करती हूँ. Julian is clever boy. I like him. Minnie is our friend. Minnie is 12-year-old. Minnie, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पर. Minnie is our friend. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ as our friend. She is 12 years old. ठीक है. मिनी जो है वो कहते हैं हमारी फ्रेंड है, वो 12 साल की है. और जो 6th वन है, आई विल राइट हियर. द गर्ल्स won the competition. The principal gave the girls an award. The girls competition. The principal will give them an award. कहते हैं कि जो है ना कि इसमें पहली लाइन में हमें सब कुछ अंडरस्टैंड मतलब सब कुछ समझ लग जाता है कि मोहसिन इज़ अ बॉय, मतलब मोहसिन एक लड़का है. तो बार बार हम मोहसिन नहीं यूज़ करेंगे, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ही इज़ एट होम. मोहसिन एट होम. और पहली लाइन में हमें सब कुछ पता लग गया कि कौन जीती है कंपटीशन. गर्ल्स जीती हैं. तो प्रिंसिपल उन्हें ही अवार्ड देंगी. अगर बॉयज़ जीते हैं तो बॉयज़ को मिलेगा, अगर गर्ल्स जीती हैं तो गर्ल्स को मिलेगा. ऐसे थोड़ा ना अगर बॉय जीते हैं तो गर्ल्स को मिल जाएगा. तो देम भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसे कर सकते हैं यूज़ कि कह लो जैसे हम उस सीक्वेंस मतलब परफेक्ट बनाने के लिए सेंटेंस. ओके, नाउ वी विल डू रीड दिस सेंटेंस. दिस वन पोसेसिव नाउन प्रोनाउंस. Sometime he brought a carrot for my mother. She would eat hers with relish. मतलब कभी कभी वो मेरी मदर के लिए कैरेट लाता है, गाजर लाता है, वो relish के साथ उसे खाती है. मतलब the pronoun hers tells us to whom something belongs. Mine, ours, yours, his, hers and theirs are possessive nouns. जैसे mine कि हर मतलब बताता है कि माइन मतलब मेरा, जा उनका, वर्स भी उनका, हिज मतलब उसका, हर्स भी मतलब उसका, देयर्स मतलब उनका. पोसेसिव नाउन्स ये होते हैं पोसेसिव नाउन्स. नाउ वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज. कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग सुटेबल पोसेसिव नाउन्स. दिस हाउस बिलोंग टू अस. इट इज आवर्स. इट इज आवर्स.
This briefcase belong to my mother. It is hers. कहते ये जो ब्रीफकेस है मेरी मदर को बिलोंग करता, मतलब उसकी मदर को बिलोंग करता है. इट इज हर, ये उनका है. दिस बुक बिलोंग्स टू माई मदर. इट इज हिम. हिम्स तो नहीं है. इट इज हर्स, दियर्स, आवर, योर्स, दियर्स, हर्स. इट इज हिम. belong to my. It is hers. It is him. थोड़ा और तक ये रहने दो, आपको मैं बाद में करवा दूंगा. मीना said the pencil box belong to me. It's mine. मेरा है. mine मतलब मेरा, जब मैं. The children have a new computer. It's their. It is their. Theirs नहीं है. Theirs. It's theirs. It's your. They didn't have a. It's theirs. The yours. It's yours. No, it's theirs. This pen belongs to you. It's your. It is him ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि सभी एक यहाँ पर possessive noun आ गए हैं, तो him ही आएगा. Now we will using word antonyms. An antonym is a word that is opposite of the meaning to another word. जैसे ये एंटोनियम होते हैं, जैसे ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही होते हैं ये. जैसे ट्रू फॉल्स मतलब सही गलत. काइंड क्रूअल मतलब काइंड मतलब दयालु, और क्रूअल मतलब चालू. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सुटेबल एंटोनियम इन कॉलम बी. ब्रेव मतलब बहादुर, और क्रॉडली, गो, सैड, डाउन, आर्टिफिशियल पता नहीं हमें नहीं. क्राउडली भी नहीं हो सकता, बाद में करेंगे. ब्रेव नहीं, रहने दो. हैप्पी मतलब सैड, खुश ना. कम डाउन हो नहीं सकता. कम, गो. नेचुरल का आर्टिफिशियल. डस्क मीनिंग होता है जैसे कि डस्क मतलब होता है शाम, और डाउन मतलब सवेर. सो डस्क शाम, तो सवेर हो सकता है ये. ब्रेव मतलब बहादुर, क्राउडली मतलब भीड़, तो इसका ये होगा. ब्रेव मतलब बहादुर, और क्राउडली मतलब जो भीड़ भाड़ में कई लोग की डरपोक भी होते तो क्राउडली कहते हैं. कम मतलब आना, और गो मतलब जाना, तो ये ब्रेव का क्राउडली होगा, क्योंकि यही नेचुरल का आर्टिफिशियल यही बचा है. या समझ नहीं आएगा तो मैं लिख देता हूँ. 4 नंबर, डाउन का 5th, ब्रेव फर्स्ट, एंड हैप्पी का 2nd, एंड कम 3rd. ओके, नाउ वी विल लर्न प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस इज एडेड बिफोर टू वर्ड टू कम न्यू वर्ड. मतलब जैसे प्रीफिक्स, जैसे अगेतर हम पंजाबी में करते हैं ना, अगेतर, वैसे ही होते हैं. वर्ड के आगे आने वाले, जैसे ऑनेस्ट के आगे हम डिस लगा दें, तो डिस लगा दें तो हम वर्ड बन जाएगा डिसऑनेस्ट. मतलब जो दयालु, मतलब कि वो जो ईमानदार ना हो, जो बेईमान हो, उसे हम डिसऑनेस्ट कहते हैं. काइंड के आगे अन लग जाए तो अनकाइंड. लीड के आगे मिस लग जाए तो मिसलीड. अनकाइंड मतलब जो दयालु ना हो, काइंड मतलब जो दयालु हो. लीड मतलब किसी को लीड करना, मतलब किसी को गलत सही राह पर मतलब बताना. और मिसलीड मतलब किसी को गलत राह बताना. रीयूज मतलब कि जो हम यूज़, जैसे मैं शार्पनर यूज़ कर रहा हूँ, रेजर यूज़ कर रहा हूँ. रीयूज मीन मतलब इस चीज़ को हम फेंक भी देते हैं पर फिर यूज़ कर लेते हैं, बार बार इसे यूज़ करना, उसे रीयूज़ कहते हैं. Here are some common meaning of few prefixes. Opposite of dis, not, not, re again, miss strongly or badly, miss badly, this opposite of. Yes, so we will do the now we will do exercise. Make a new word by adding suitable prefix to go to the word in bracket, then fill in the blank with the new words. I am afraid. I am agree with you on that issue.
मैं डरा हूँ, मैं अफ्रेड, मैं मतलब मैं डरा हुआ हूँ, तो आई हैव टू एग्री, मतलब एग्री मतलब किसी चीज़ में अपनी हाँ मिलाना विद यू। वो डरा हुआ है पर वो एग्री क्यों करेगा, तो हम करेंगे डिस एग्री, वर्ड इज डिस एग्री। शी रीड एंड डैश द यूनिवर्सिटी ऑफ, शी रीड एंड रीरीड, रीरीड हो सकता है, शी रीरीड, रीरीड द यूनिवर्सिटी ऑफ, शी यूज्ड टू डैश प्लेस her keys often, now she hangs them to the her neck, used to क्या होगा, she used to place, replace, replace, she used to replace her keys often, no ये देखेंगे बाद में। she is not friendly as he seems, not friendly, she is unfriendly as he seems, as unfriendly, unfriendly. It is usual, it is unusual for such, unusual young to sing so perfectly. I think this plan will misfire, misplace, she used to misplace keys, I think this plan will fire, this plan disfire, no, unfire, this plan will unfire, unfire हो सकता है, तो ये बाद में देखेंगे, लास्ट ऑफ द वीडियो आई विल डू दिस। सो नाउ वी विल डू होमोफोन्स। होमोफोन्स इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज द सेम एज अनदर बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। कहते जैसे हियर और हियर है तो प्रोनाउंसिएशन में है सेम मीनिंग है, हियर मतलब बाल और हियर मतलब एक एनिमल होता है, पर इनके स्पेलिंग और इनके मीनिंग, जैसे इस हियर का मतलब है बाल और इस हियर का मतलब है एक एनिमल, मीनिंग भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। दिस इज HAIR एंड दिस इज HARE, so meanings are different and spellings are also different. So fairy tale charms. Now we will choose a right word to answer the questions. Use a dictionary if you are in a doubt. Beach, beach, which is a tree. Layer, layer. So now we will use dictionary. मैंने मीनिंग निकाले हैं, जैसे स्टूडेंट्स इस बीच का मतलब होता है, इस बीच का मतलब है डिक्शनरी में अ शोर कवर्ड इन सैंड और स्टोन वेयर पीपल गो टू स्विम। जैसे देखो अ शोर कवर्ड इन सैंड और स्टोन वेयर पीपल गो टू स्विम, जैसे कि जो उसके सैंड के मतलब पहाड़ और पत्थरों के वहाँ पर लोग स्विम भी करते हैं, मतलब तैरते भी हैं। विच इज ट्री, दिस ये भी जो ट्री है बार्क, जैसे ये एक बहुत सारा बड़ा सा पेड़ होता है उसे ये बीज कहते हैं। आई फाउंड दिस मीनिंग ऑन नेट। लेयर एंड लेयर, LAIR वाला लेयर और LAVIR, विच इज द वाइल्ड एनिमल्स होम। लेयर मतलब जैसे सतह, जैसे इस बुक की सतह है, जैसे दिस इज अ लेयर ऑफ बुक, and LAI वाला लेयर this will be, I will find this, and now we will be done. Next part, which is the part of horse bridle, horse bridle, rain बारिश, RAIN मतलब horse bridle, पार्ट होता है horse bridle का। पेयर पेयर पेयर, पेयर ये वाला पेयर तो नहीं हो सकता, पेयर मतलब दो थिंग्स, विच मीन्स ऑफ कपल, कपल मतलब दो जाने, एक हस्बैंड एक वाइफ, तो पेयर पेयर होगा दो चीज़ें। Which mean to grasp, it seize,
किसी चीज़ को सडनली पकड़ लेना। विद दिस कैंट जो होता है वो $100 के मतलब होता है। और आपको अगर इसका मीनिंग करेक्ट मीनिंग फाइंड करना तो आप गूगल पर सर्च कीजिए मीनिंग ऑफ कैंट। नाउ वी विल डन विद दिस फर्स्ट चैप्टर विद द ग्रामर ऑफ दिस पार्ट एंड विद क्वेश्चन आंसर्स with reading part. So in next video we will do workbook part of this chapter. And so thank you. If you like my video, please like, and if you don't like my video, please comment why do you don't like my video. And please subscribe the button, subscribe and click the press the bell icon to get notification first. Thank you.